Good morning, students. Welcome to ABN online classes. Myself Sandeep Kumar, your computer teacher. Let's start with the computer science class. Student, in last class we have performed the practicals of chapter number 2nd, and today we are going to perform the practicals of chapter number 3rd on data frame. In this chapter, we are going to perform practicals of data frame by using advanced method. For this, we have to create a case study. In this chapter, we have from the starting we have studied the case study. In case study, we have the columns name, unit test, math, science subject, math, science, SST, Hindi, and English. Then we have to create first a series of UT. Then we have the following data. For this, we have to first write the statement import pandas as a printy. हम क्या करेंगे, सबसे पहले pandas को import करेंगे. After that, we make a series that is marks UT. Marks UT contain the column name, name contain the value Raman, 3 times of, then 3 times Zuhair, 3 times Aishwarya, and 3 times Misty. After that, we have second column that is UT. UT contain values unit test first, second, third. Then the contain the values first, second, third, comma first, second, third, first, second, third. Okay, so after that we have next column that is maths. Maths column contain the value 22, 21, 14, 20, 23, 22, 23, 24, 12, 15, 18, and 17. Next column we that is science, that contain the values 21, 20, 19, 17, 15, 18, 19, 22, 25, 22, 21, and 18. Next column is SST. SST column contain values 18, 17, 15, 22, 21, 19, 20, 24, 19, 25, 25, and 20. After that, we have next column that is Hindi, that contain the values 20, 22, 24, 24, 25, 23, 15, 17, 21, 22, 24, and 25. And last column we have English, that contain the values 21, 24, 23, 19, 15, 13, 22, 21, 23, 22, 23, and 20. After that, typing all the values of columns, then we type the enter statement that we have successfully created our list, that is marks UT. Now we can print the list using print statement. Then we just write print in bracket name of list, that is marks UT, bracket close, and enter. Then we have the output list that contain the values name, that contain the column name. It contains the values 3 times of Raman, 3 times of Zuhair, 3 times of Aishwarya, and 3 times of Misty. After that, second column is UT, that contains the value first 1, 2, 3, and that 1, 2, 3 for each strength in list. Now we have to make this list. Now we have to convert this list in a data frame. For this, we have to write the statement df equal to pd.dataframe marks UT. Then we have write the statement here df equal to pd.dataframe. PD is the pandas object, and dot data frame function is used to create a data frame. And we have to make the data frame from the list marks UT. Then we have to pass the parameter marks UT. And after that, passing the parameter, press the enter button. We have successfully created our data frame. Now we have to print this data frame. For print data frame, you write the statement print name of data frame inside the bracket df, then press the enter. ओके सर, तो हम कंटिन्यू से हमने प्रैक्टिकल को नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने लिखा प्रिंट df इक्वल टू pd.dataframe इन पैरामीटर हमने लिखा मार्क्स UT थे. मार्क्स UT जो हमारे पास सीरीज थी उसको हमने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद में इस डेटा फ्रेम को हमने प्रिंट करवाया. तो हमारे पास में इस तरीके से डेटा फ्रेम प्रिंट हुई. डेटा फ्रेम में फर्स्ट कॉलम था हमारा नेम, तो नेम कंटेन करा है 3 टाइम्स ऑफ रमन, आफ्टर 3 टाइम ऑफ जुएर, 3 टाइम ऐश्वर्या और 3 टाइम मिस्टी. यूनिट टेस्ट की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड. मार्क्स नेक्स्ट कॉलम था मैथ्स, तो मैथ्स कॉलम की वैल्यू हुई साइंस कॉलम, एसएसटी हिंदी और इंग्लिश कॉलम. ये तो गया हमारे पास में एक डेटा. हमने क्या किया, एक सीरीज को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया. अब हम क्या करते हैं, इस डेटा फ्रेम पे एडवांस ऑपरेशन को स्टडी करते हैं, दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स हम स्टडी करते हैं. In this descriptive static, we have to study the some function that is maximum, minimum, count, sum, mean, median, mode, quartile, and variance. Okay then, so start from the first topic, calculating maximum values. Maximum values को हम कैसे calculate कर सकते हैं?
To calculate the maximum values, we use the function dataframe.max function. हम dataframe.max function की सहायता से क्या कर सकते हैं, इस डेटा फ्रेम में किसी भी कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने लिखा print df.max, print df.max फंक्शन को हमने अप्लाई किया. तो हम क्या करें, डेटा फ्रेम में हर कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. तो मैक्सिमम वैल्यू को हम कैलकुलेट कर रहे हैं. फर्स्ट कॉलम था हमारा नेम, तो नेम में मैक्सिमम जो वैल्यू है, कैरेक्टर मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 है. ये कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टर के थ्रू इसको फाइंड आउट किया गया है. नेक्स्ट कॉलम है यूटी कॉलम की जो मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 3. थर्ड कॉलम हमारे पास में मैथ्स, तो मैथ्स कॉलम में हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 24. उसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट कॉलम है साइंस, तो साइंस कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 25. अब हमारे पास में नेक्स्ट कॉलम है एसएसटी, तो एसएसटी कॉलम की जो मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 25. नेक्स्ट कॉलम है हिंदी कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास में है 25. और लास्ट कॉलम हमारे पास इंग्लिश, तो इंग्लिश कॉलम की हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 24. तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा फ्रेम डॉट मैक्स फंक्शन की सहायता से किसी भी डेटा फ्रेम में मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास में एक प्रोग्राम है. क्वेश्चन की मैंने राइट द स्टेटमेंट टू आउटपुट द मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन इन ईच सब्जेक्ट इन ईच टेस्ट सेकंड. क्वेश्चन में क्या है, राइट द स्टेटमेंट टू आउटपुट द मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन इन ईच सब्जेक्ट. हर सब्जेक्ट के हमें क्या करना है, मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करने हैं इन यूनिट टेस्ट सेकंड. यानी यूनिट टेस्ट सेकंड में हर स्टूडेंट्स के हर सब्जेक्ट्स के हमें क्या करना है, या सेकंड यूनिट टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स के हर सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स हमें प्रिंट करवाने. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी जो डेटा फ्रेम है डीएफ, इस डेटा फ्रेम डीएफ से हम क्या करते हैं, सेकंड यूनिट टेस्ट के मार्क्स को फिल्टर कर लेते हैं. तो फिल्टर करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं. एक नेक्स्ट हमें डेटा फ्रेम बनानी होगी, तो हमने लिखा df1 इक्वल टू df, ब्रैकेट में लिखा df डॉट ut इक्वल टू 2. यानी हम लोग क्या करें, सेकंड यूनिट टेस्ट के जो भी डेटा है उनको हम लोग क्या करें, यहाँ से फिल्टर कर रहे हैं. एंटर बटन लगा दिया, ये हमारे डेटा फिल्टर हो गया. अब हमें इन डेटा को देखना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इनको प्रिंट करवा सकते हैं. प्रिंट करवाने के हम लिखेंगे प्रिंट इनसाइड द ब्रैकेट हमने लिखा df1 डेटा प्रिंट df1 एंटर. ये हमारे पास में डेटा फ्रेम प्रिंट हो गई df1. कौन सी डेटा फ्रेम थी, हमारी ओरिजिनल डेटा फ्रेम df में से हमने यूनिट टेस्ट सेकंड के डेटा को फिल्टर करवा लिया और फिल्टर करवाने के बाद में उनको प्रिंट करवा दिया. तो रमन के यूनिट टेस्ट में सेकंड में कौन सा था, रमन, तो ये हमारा रमन के डेटा प्रिंट होंगे फर्स्ट रो. उसके बाद में सेकंड नेक्स्ट हमारे पास में रो नंबर 4 जुएर के डेटा हमारे पास प्रिंट होंगे. फिर उसके बाद में नेक्स्ट यूनिट टेस्ट है रो नंबर 7, तो कंप्लीट रो नंबर 7 प्रिंट हो गई. और उसके बाद में लास्ट रो हमारे पास में 10. ओके, तो ये हमारे क्या हो गए, सेकंड यूनिट के टेस्ट के डेटा को हमने फिल्टर कर लिया. अब हमें क्या करना है, इस जो हमने सेकंड यूनिट टेस्ट के डेटा को फिल्टर किया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमें क्या करना है, हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स को कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए वही सिंपल स्टेटमेंट हम लिखेंगे. हमने लिखा प्रिंट, डेटा फ्रेम का नेम हमारा df1 डॉट मैक्स. हम क्या करें, df जो हमारे डेटा फ्रेम है df1, उस पर हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, मैक्सिमम फंक्शन अप्लाई करें. क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, सेकंड यूनिट टेस्ट में हर सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स को कैलकुलेट करना है. जैसे हम एंटर बटन लगाएंगे तो हमारे पास में क्या होगा, इस डेटा फ्रेम का आउटपुट होगा. ओके स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन. जब हमें क्या करना हो, किसी कंडीशन के आधार पर गिवन डेटा फ्रेम में से वैल्यूज को फाइंड आउट करनी हो, तो पहले हम क्या करें, अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक हम नई डेटा फ्रेम बनाएंगे. हमारे ओरिजिनल डेटा फ्रेम से न्यू डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग दिस कंडीशन. हम इसको बोलते हैं फिल्टरिंग ऑफ डेटा फ्रेम. और फिल्टर करने के बाद में आपकी जो नई डेटा फ्रेम होगी उस पर आपको वो जो डिजायर जो आपका ऑपरेशन है उसको आप क्या करोगे, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो. इसी तरीके से अगर हम लोग क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, मैक्स फंक्शन में बाय डिफॉल्ट एक्सेस इक्वल टू 0 होता है. यानी ये क्या होता है, कॉलम पे अप्लाई होता है. अगर आप रो पे भी अगर इस मैक्सिमम फंक्शन को अप्लाई करना चाहो तो आप कर सकते हो. इसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे df. फर्स्ट हम क्या करते हैं, हमारे ओरिजिनल डेटा फ्रेम में मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, तो हमने लिखा df, हम लिखेंगे प्रिंट इनसाइड द ब्रैकेट df डॉट मैक्स. हमने लिखा df डॉट मैक्स और हमने पैरामीटर लिखा एक्सिस इक्वल टू 1. एक्सिस इक्वल टू 1 हमने पैरामीटर काम में लिया. इसका मतलब क्या, काम पे अप्लाई होगा. अभी ये जो पैरामीटर है वो किस पे अप्लाई होगा, रो पे अप्लाई होगा. यानी रो में हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना. लिखा प्रिंट df डॉट मैक्स एक्सिस इक्वल टू 1.
एक्सिस वन इक्वल टू का मीनिंग होगा जो हम पैरामीटर है, जो हम फंक्शन काम ले रहे हैं वो किस पे अप्लाई कर रहे हैं, रो पे। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी डेटा फ्रेम डीएफ है उसमें हर रो की मैक्सिमम वैल्यू को ये फाइंड आउट करेगा। तो फर्स्ट रो थी 0, 0 की मैक्सिमम वैल्यू 22, सेकंड रो थी हमारे पास 1, 24, 2, 3, 4, ऐसे हमने क्या किया, कंप्लीट हर रो इस रो का हमने क्या किया, मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अगर आप इसके मैक्सिमम फंक्शन के ब्रैकेट में अगर आप कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हो, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट एक्सिस इक्वल टू 0, एक्सिस इक्वल टू 0 का मीनिंग होता है कि आप इस मैक्सिमम फंक्शन को किस पे अप्लाई कर रहे हो, कॉलम पर अप्लाई कर रहे हो। ओके स्टूडेंट, उसके बाद में नेक्स्ट हम फंक्शन पढ़ते हैं कैलकुलेटिंग मिनिमम वैल्यूज। इसके लिए हम फंक्शन काम लेते हैं डेटा फ्रेम डॉट मिन फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द गिवन डेटा फ्रेम। यानी डेटा फ्रेम डॉट मिक्स फंक्शन को यूज में लेके हम लोग क्या करते हैं, किसी डेटा फ्रेम में से मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट df डॉट मिन। ऐसे यहाँ से हम क्या करते हैं, डेटा फ्रेम में मिनिमम फंक्शन को कैलकुलेट, मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग मिन फंक्शन। तो ये क्या करेगा, डेटा फ्रेम के कंप्लीट हर रो में से, सॉरी हर कॉलम में से क्या करेगा, आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेगा। क्योंकि हमने यहाँ पे पैरामीटर पास नहीं किए हैं, यहाँ पे हमने कोई भी पैरामीटर नहीं लिखा है मिन फंक्शन में, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होगा, एक्सिस इक्वल टू 0, यानी कि इस पे होगा, कॉलम पे अप्लाई होगा। इसी तरीके से अगर आप इस रो में अगर आप मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे प्रिंट df डॉट मिन इन पैरामीटर आपने लिखा एक्सिस इक्वल टू 1, आप पैरामीटर पास करोगे तो आपको क्या होगा, इस रो में आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट होगी। ओके स्टूडेंट, ये हमारा होगा कैलकुलेटिंग मिनिमम वैल्यू। इसी तरीके से हमें इक्वेशन गिवन है, राइट द स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन बाय ए पर्टिकुलर स्टूडेंट रमन इन ऑल यूनिट टेस्ट फॉर ईच सब्जेक्ट। इसने कहा है राइट द स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन बाय ए पर्टिकुलर स्टूडेंट रमन। हमें ओनली स्टूडेंट रमन के डेटा चाहिए इन ऑल द यूनिट टेस्ट, हर टेस्ट में, यानी यूनिट टेस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में रमन के द्वारा जो मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं इस सब्जेक्ट में, उसका मिनिमम मार्क्स हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारी ओरिजिनल डेटा फ्रेम थी डीएफ, उसमें ओनली रमन के स्टूडेंट नेम रमन के हमें डेटा फिल्टर करने हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे डीएफ, हमें डेटा फ्रेम बनाते हैं, इसके लिए लिखा डीएफ रमन इक्वल टू डीएफ रमन इक्वल टू डीएफ डॉट एलओसी, फिर हमने लिखा ब्रैकेट डीएफ डॉट नेम, df डॉट एलओसी ब्रैकेट df डॉट नेम इक्वल टू रमन। ओके, इक्वल टू रमन। हम क्या करें, यहाँ से रमन, जो स्टूडेंट रमन है उसके डेटा को हम क्या करें, यहाँ से फिल्टर कर रहे हैं। जस्ट वेट, आई थिंक भी हमने जो नेम स्टूडेंट्स है उसका है हमने कैपिटल लिया है। तो हम स्टेटमेंट को वापस से राइट करते हैं, क्योंकि ये पाइथन लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है, यानी जैसे आपने लिखा है उसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिखा df डॉट नेम, हमने क्या किया, यहाँ से रमन स्टूडेंट है उसकी डेटा फिल्टर कर लिया, उसको प्रिंट करवाना, तो हम लिखेंगे प्रिंट, नई डेटा फ्रेम मैंने बनाई है df रमन। इस डेटा फ्रेम को हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रिंट करवाते हैं। तो हमें जो स्टूडेंट रमन है उसके ईच सब्जेक्ट, ईच यूनिट टेस्ट में हर सब्जेक्ट के मार्क्स हमारे पास प्रिंट हो गए। तो रमन स्टूडेंट ने फर्स्ट यूनिट टेस्ट के मार्क्स हो गए इसके ऑल सब्जेक्ट में, इसी तरीके से सेकंड यूनिट टेस्ट के मार्क्स हो गए, इसी तरीके से थर्ड यूनिट टेस्ट के मार्क्स पे हमने प्रिंट करवा लिया। अब हमें क्या करना है कि जो हमने जो नई डेटा फ्रेम बनाई है डीएफ रमन, उसमें हमें क्या करना है, इस सब्जेक्ट में हमें मिनिमम मार्क्स को कैलकुलेट करना है। तो इस सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शन अप्लाई कर देंगे इस डेटा फ्रेम पे। तो हम लिखेंगे प्रिंट मिनिमम फंक्शन हमें अप्लाई करना है डेटा फ्रेम में रमन, तो हम लिखेंगे df रमन डॉट मेन। हमने क्या किया है, df रमन है उसमें हमने मिनिमम वैल्यू अप्लाई कर दी, मिनिमम फंक्शन अप्लाई कर दिया। तो हमारे पास दो कॉलम है, पहला होगा उसका नेम की मिनिमम वैल्यू होगी रमन, सेकंड कॉलम में यूनिट टेस्ट की मिनिमम वैल्यू होगी 1, थर्ड कॉलम था मैथ्स कॉलम की मिनिमम वैल्यू है दैट इज 14, नेक्स्ट कॉलम हमारे पास साइंस कॉलम की मिनिमम वैल्यूज है वो 19, नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास एसएसटी कॉलम की मिनिमम वैल्यूज है वो 15, नेक्स्ट कॉलम हमारे पास हिंदी कॉलम की मिनिमम वैल्यू है दैट इज 20,
नेक्स्ट कॉलम हमारे पास में इंग्लिश कॉलम की मिनिमम वैल्यू है 21। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कैलकुलेटिंग सम ऑफ वैल्यूज, यानी हम डेटा फ्रेम में इस कॉलम या इस रो की इस कॉलम या इस रो की या कंप्लीट डेटा फ्रेम के सम ऑफ वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम फंक्शन काम लेते हैं, डेटा फ्रेम डॉट सम फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द सम ऑफ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम की वैल्यूज का सम फाइंड आउट करने के लिए इसको काम में लेते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्लीट डेटा फ्रेम का सम निकालते हैं इस कॉलम का। तो हम लिखेंगे प्रिंट इनसाइड द डेटा फ्रेम की हमारी ओरिजिनल डीएफ, तो हमने लिखा डीएफ डॉट सम। हमने यहाँ से क्या कर दिया, डेटा फ्रेम के इस कॉलम का हमने सम फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे हमने सम में देखो कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट एक्सिस इक्वल टू क्या होगा 0, यानी किस पे अप्लाई होगा, कॉलम पे। तो पहला कॉलम था नेम, तो नेम का सम क्या होगा, स्ट्रिंग वैल्यूज कंटेन कर रहा है तो सभी वैल्यूज को ये प्लस कर देगा। तो रमन रमन रमन, जुएर जुएर जुएर, ऐश्वर्य ऐश्वर्य, मिस्टी मिस्टी हमारे पास प्रिंट होंगे। उसके बाद में यूनिट टेस्ट, फर्स्ट यूनिट टेस्ट कॉलम है, तो यूनिट टेस्ट कॉलम की सभी वैल्यूज का सम होगा 24। साइंस कॉलम की सभी वैल्यूज का सम होगा 231। सॉरी मैथ्स कॉलम के सभी वैल्यूज का सम होगा 231। साइंस कॉलम की सभी वैल्यूज का सम होगा 237। एसएसटी कॉलम की सभी वैल्यूज का सम होगा 245। हिंदी कॉलम की सभी वैल्यूज का सम होगा 262। इंग्लिश कॉलम की सभी वैल्यूज का सम होगा 246। तो हमने क्या किया, इस कॉलम का हमने सम फाइंड आउट कर लिया। अगर इसी तरीके से अगर आपको रो की वैल्यूज का सम फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करोगे, सम में पैरामीटर पास करोगे एक्सिस इक्वल टू 1। तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे प्रिंट df डॉट सम, इन पैरामीटर में लिखा एक्सिस इक्वल टू 1, एंटर लगा देंगे। तो क्या होगा, हमारे पास में हर रो की जो हमारे पास डीएफ डेटा फ्रेम थी उसमें इस रो का सम हमें फाइंड आउट हो गया। तो जो फर्स्ट रो थी हमारे पास 0 नंबर, उसका सम हो गया 103। सेकंड रो का सम हो गया 106, फिर नेक्स्ट रो का सम हो गया 98, थर्ड रो का सम हो गया हमारे पास 103, फोर्थ रो का सम हो गया 104, फिफ्थ रो का सम है 98, सिक्स्थ रो का सम हो गया 100, सेवंथ रो का सम हो गया 110, एट्थ रो का सम हो गया 103, नाइन्थ रो का सम हो गया 107, टेंथ रो का हमारे पास सम हो गया 111 और 11th रो का सम हो गया 103। ओके स्टूडेंट, तो इस सम फंक्शन के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, पहले इस कॉलम का सम फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद में इस रो का हमने सम फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन गिवन है, write the Python statement to print the total marks secured by Raman in each subject। इसने कहा है रमन के द्वारा each सब्जेक्ट में अचीव किए गए मार्क्स का हमें क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब रमन ने 3 यूनिट टेस्ट दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो पहले हमें क्या करना होगा, रमन के डेटा को फिल्टर करना होगा। इसके लिए हमें क्या कहते हैं, रमन के डेटा फिल्टर करने के लिए एक डेटा फ्रेम हम बनाते हैं। तो पहले हम ऑलरेडी रमन के डेटा फिल्टर कर चुके हैं, जो हमारे पास डेटा फ्रेम थी उसको हम प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट डीएफ रमन डेटा फ्रेम हमने बनाए थे, इसमें क्या था, हमारे पास ओनली रमन के डेटा हमने फिल्टर किए थे। तो इसके लिए हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा था डीएफ रमन इक्वल टू डीएफ डॉट एलओसी। एलओसी मेथड क्या होगा, हमने इंडेक्सिंग टेक्निक अप्लाई की है। डीएफ डॉट नेम इक्वल टू रमन, यानी ओनली रमन के सभी डेटा हमारे पास प्रिंट होंगे। और डीएफ डॉट नेम इक्वल टू रमन का मतलब होगा रमन के जो सभी डेटा वो किसमें ट्रांसफर हो गए, डीएफ रमन में। और डीएफ रमन को हमने क्या कर दिया, यहाँ से प्रिंट करवा दिया। ओके जन, तो हमने डीएफ रमन को प्रिंट करवा लिया। अब हमें क्या करना है, इसने इस सब्जेक्ट में जो मार्क्स अचीव किए उनका हमें सम फाइंड आउट करना है। यानी टोटल फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों यूनिट टेस्ट में मार्क्स जो इसने अचीव किए उनका सम निकालना है। तो मैथ सब्जेक्ट के 3 यूनिट टेस्ट का सम आएगा, साइंस के 3 यूनिट टेस्ट का सम आएगा, एसएसटी का, हिंदी और इंग्लिश से हमें क्या करना है, सभी यूनिट टेस्ट का सम फाइंड आउट करना है। तो सम करने के लिए हमें लिखेंगे प्रिंट डेटा फ्रेम का नेम है हमारे पास डीएफ रमन डॉट सम। तो हमारे पास क्या होगा, इसकी डेटा फ्रेम में जो कि ईच कॉलम है उसका सम हो गया। पहला कॉलम हो गया नेम, तो नेम में 3 टाइप ऑफ रमन है, तो तीनों का सम हो गया 3 टाइप ऑफ रमन। नेक्स्ट कॉलम है यूनिट टेस्ट यूटी, यूटी का सम हो गया 3 to 5.1, 6 हो गया तो 6 हो गया। इनका सम हो गया 2 3 7 और 4 557। इसी तरीके साइंस कॉलम का सम हो गया 60, एसएसटी का सम हो गया 50, हिंदी कॉलम का सम हो गया 66 और इंग्लिश कॉलम का सम हो गया हमारे पास में 68। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा थर्ड फंक्शन था सम। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी हमें किसी गिवन डेटा फ्रेम में से टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। कितने हमारे पास डेटा है,
तो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन काम में लेते हैं डेटा फ्रेम df, यानी डेटा फ्रेम डॉट काउंट फंक्शन को यूज में लेते हैं डेटा फ्रेम में से वैल्यूज को काउंट करने के लिए। डेटा फ्रेम डॉट काउंट फंक्शन विल डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन ईच कॉलम और ईच रो और इट ऑफ ए डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम की हर रो में या हर कॉलम में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं उसको काउंट करने के लिए इसको काम में लेते हैं। तो हमारे पास में ओरिजिनल डेटा फ्रेम है वो df, तो पहले हम इसमें क्या करते हैं एक्सिस इक्वल टू 0 यानी कॉलम पे अप्लाई करते हैं। तो हमने इसके लिखा प्रिंट df डॉट काउंट इनसाइड द ब्रैकेट हमने लिखा एक्सिस इक्वल टू 0। अगर हम एक्सिस इक्वल टू 0 पे नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा कॉलम पे अप्लाई होगा, और आप हमने लिखा एक्सिस इक्वल टू 0 तो भी क्या होगा कॉलम पे अप्लाई होगा। तो हमने एंटर लगा दिया। एंटर लगाने बाद में क्या होगा ईच कॉलम में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। तो नेम कॉलम में टोटल नंबर 12 है, यूनिट टेस्ट में भी वैल्यूज 12 है, मैथ्स में भी 12 वैल्यूज हैं, साइंस में भी 12 वैल्यूज हैं, एसएसटी में भी 12 वैल्यूज हैं, हिंदी कॉलम में भी 12 वैल्यूज हैं और इंग्लिश कॉलम में भी 12 वैल्यूज हैं। तो ये हमने फंक्शन अप्लाई कर दिया काउंट फंक्शन ऑन कॉलम। अब हम क्या करते हैं रो पे अप्लाई करते हैं। तो रो पे अप्लाई करने के लिए हम लिखेंगे प्रिंट df डॉट काउंट इनसाइड द पैरामीटर हमने लिखा एक्सिस इक्वल टू 1। तब क्या होगा हर रो में वैल्यूज को काउंट करेगा। जस्ट 1 मिनट। df डॉट काउंट एक्सिस, सॉरी हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, दोबारा टाइप करते हैं। हम लिखेंगे प्रिंट df डॉट काउंट इन पैरामीटर में लिखा एक्सिस इक्वल टू 1। एंटर लगाएंगे तो इस रो में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को कैलकुलेट करेगा। तो 0 रो में रो नंबर 0 में टोटल वैल्यू है 7, फर्स्ट रो में भी 7, सेकंड में 7, थर्ड में 7, फोर्थ रो में 7, फिफ्थ रो में भी 7, सिक्स्थ रो में भी टोटल वैल्यूज है 7, सेवंथ रो में टोटल वैल्यू है 7, एथ रो में टोटल वैल्यू है 7, नाइन्थ रो में टोटल वैल्यूज है 7, 10th रो में टोटल वैल्यूज है 7 और 11th रो में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है 7। तो काउंट फंक्शन की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं इस डेटा फ्रेम के ईच रो एंड कॉलम में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने डेटा फ्रेम पे स्टडी किया एडवांस ऑपरेशन। पहले हम लोगों ने क्या किया डेटा सीरीज के थ्रू हमने क्या किया डेटा फ्रेम को क्रिएट किया। डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के बाद उस डेटा फ्रेम को हम लोगों ने यहाँ से प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करने के बाद में उस पर एडवांस मैथमेटिकल ऑपरेशन सबसे पहले मैक्स फंक्शन को हमने अप्लाई किया। तो सबसे पहले मैक्स फंक्शन बाय डिफॉल्ट कॉलम पे इस कॉलम का मैं मैक्स इस कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट किया था। फिर हमने क्या किया किसी पर्टिकुलर कंडीशन के आधार पर डेटा को फिल्टर करके मैक्सिमम कॉलम वैल्यू फाइंड आउट किए। तो इन दिस एग्जांपल हम लोगों ने क्या किया यूनिट सेकंड के डेटा को हमने फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद में हम क्या किया इस कॉलम को हमने मैक्सिमम वैल्यू को काउंट आउट किया। उसी तरीके से हम लोग क्या फिर मैक्सिमम फंक्शन को हमने किस पे अप्लाई किया है रो पे अप्लाई किया है। तो रो पे अप्लाई करने के लिए हमने मैक्सिमम मैक्स फंक्शन में हमने पैरामीटर ग्रुप में एक्सिस इक्वल टू 1 को पास किया। एक्सिस इक्वल टू 1 का मतलब होता है रो। तो रो पे इस रो में हमने मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद में सेकंड फंक्शन हम लोगों ने यहाँ से स्टडी किया मिनिमम। डेटा फ्रेम डॉट मिन फंक्शन होता है उसको यूज में लेते हैं डेटा फ्रेम में से मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो वही सेम मेथड होगा। अगर मिन फंक्शन में आप पैरामीटर पास नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट किस पे होगा कॉलम पे अप्लाई होगा। और अगर आपने लिखा एक्सिस इक्वल टू 1 तो आप इसका मतलब क्या होगा ये जो मिनिमम फंक्शन है वो किस पे अप्लाई होगा रो पे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कंप्लीट डेटा फ्रेम में से मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो इसके लिए लिखा df प्रिंट df डॉट मिन फंक्शन यानी कंप्लीट डेटा फ्रेम में हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो इस कॉलम के हमारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी नेम यूटी मैथ साइंस एसएसटी हिंदी और इंग्लिश कॉलम की मिनिमम वैल्यू आ गई। फिर हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने लिखा प्रिंट df डॉट मीन एक्सिस इक्वल टू 1। इसका मतलब हमने क्या किया जो डेटा फ्रेम हमारे df डेटा फ्रेम थी उसमें हमने क्या किया एक्सिस इक्वल टू 1 यानी ईच रो की हमने मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट किया। तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ रोज है 12। तो ईच रो का हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई। उसी तरीके से अगर आपको कोई कंडीशन गिवन हो उस कंडीशन के आधार पर अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालने तो हम क्या करेंगे पहले कंडीशन के आधार पर एक नई डेटा फ्रेम बनाएंगे। ओरिजिनल डेटा फ्रेम से हमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन डेटा को फिल्टर करके नई डेटा फ्रेम यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो नई डेटा फ्रेम हमने बना दी। जैसे हमें क्या करना है रमन स्टूडेंट्स के डेटा में से मिनिमम वैल्यू हमें प्रिंट निकालनी थी। तो हमने सबसे पहले रमन के डेटा फिल्टर कर लिया। इसके लिए हमने स्टेटमेंट लिखा df रमन इक्वल टू df डॉट loc df डॉट नेम इक्वल टू रमन। यहाँ से रमन के डेटा को हमने फिल्टर करके df रमन में ट्रांसफर कर दिया और उसको हमने प्रिंट करवा दिया। हमारे पास df रमन हो गई। इस df रमन में से हमें मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करके डायरेक्ट हमने इस पे क्या कर दिया मिन फंक्शन को अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास में था सम फंक्शन। तो सम फंक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं सम ऑफ वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं किसी डेटा फ्रेम में। तो इसके लिए हम लिखते हैं डेटा फ्रेम डॉट सम फंक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कंप्लीट डेटा फ्रेम में से सम निकालते हैं। तो इसके लिए हमने लिखा प्रिंट
df डॉट सम, यानी कंप्लीट डेटा फ्रेम में सम फंक्शन अप्लाई कर दिया तो इस कॉलम का हमें क्या होगा, सम ऑफ वैल्यूज हमें फाइंड आउट होंगे। तो नेम, यूटी, मैथ, साइंस, हिंदी और इंग्लिश कॉलम के हमारे पास सम ऑफ वैल्यूज आ गई। ये तो था हमारे पास में, हमने यहाँ पे सम में कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट एक्सिस इक्वल टू 0 यानी कॉलम पे अप्लाई हुआ है। अगर हम पैरामीटर ग्रुप में लिखते हैं एक्सिस इक्वल टू 1 तो इसका मतलब किस पे अप्लाई होगा, रो पे अप्लाई होगा। तो ईच रो है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ रोज है 12, तो ईच रो का हमारे पास सम ऑफ वैल्यूज आ गया। इसी तरीके से अगर आपको कोई कंडीशन गिवन है कि रमन स्टूडेंट्स के सभी रमन स्टूडेंट है उसके ईच सब्जेक्ट का हमें सम निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले रमन के डेटा फिल्टर करने हैं। तो पहले हम लोग रमन के डेटा फिल्टर करते हैं। रमन के डेटा फिल्टर करने के हमने लिखा df रमन इक्वल टू df इनसाइड द ब्रैकेट df डॉट नेम इक्वल टू रमन। तो रमन के डेटा को हमने ट्रांसफर कर दिया df रमन में। df रमन को हमने यहाँ से प्रिंट करवा दिया, तो हमारे पास में रमन के सभी डेटा प्रिंट हो गए। अब इनका सम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, df रमन पे हम सम फंक्शन को अप्लाई करके यहाँ से इसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सम फंक्शन में कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट रो पे होगा। अगर आपको बाय डिफॉल्ट कॉलम पे होगा, अगर आपको रो पे अप्लाई करना है तो हम लिखेंगे पैरामीटर एक्सेस इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, कॉलम में से सम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमने स्टडी किया था काउंट फंक्शन। डेटा फ्रेम डॉट काउंट फंक्शन क्या करेगा, डेटा फ्रेम के ईच कॉलम या ईच रो में से टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट करता है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा प्रिंट df डॉट काउंट एक्सिस इक्वल टू 1। एक्सिस इक्वल टू 1 का मतलब हो गया हमने किसमें कब में रो में, ईच रो में हमने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को फाइंड आउट किया है। अगर आप लिखते हो एक्सिस इक्वल टू 0 तो इसका मतलब होगा आप इस कॉलम में हम क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट फंक्शन मीन, मोड, मीडियन एंड क्वार्टर। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।